ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਥਸ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ 10th ਕਲਾਸ ਦਾ ਮੈਥਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 2 ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 2.1। ਸੋ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 2 ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਮਤਲਬ ਐਲਫਾਬੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੌਨਸਟੈਂਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐਲਜੇਬਰਾਇਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਤੇ ਉਹ ਐਲਜੇਬਰਾਇਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਬਾਰੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਆਫ ਦੀ ਵੇਰੀਏਬਲ x। ਅਗਰ ਉਹ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ x ਵੇਰੀਏਬਲ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਗਰੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਲੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ, ਜ਼ੀਰੋ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ, ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ, ਕਿਊਬਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਰ ਡਿਗਰੀ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਲੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਡਿਗਰੀ 2 ਹੈ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਆਫ ਅ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਨੀ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਕੇ, ਐਨੀ Any real number k is called the zero of a polynomial if p of x, polynomial p of x, if p of k is equals to 0। कोई भी real number ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ k, any real number k मतलब k ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ k ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, any real number k is called the zero of a polynomial। ਉਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈ px, ਉਹਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਫ ਉਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ x ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਰੱਖ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ k ਨੂੰ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਆਫ ਦੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਕਵਾਂਗੇ। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल अपने को एक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल्स टू x क्यूब x स्क्वायर माइनस 9। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेने हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जेडी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी। सो p ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 9 एक पॉलिनोमियल है। मैं फाइंड करने इस पॉलिनोमियल के जीरोज कि इस पॉलिनोमियल के जीरोज की होंगे। सो जीरोज वो होंगे वो वैल्यू x की जेडे नंबर जो मैं इस पॉलिनोमियल पुट करा, जिथे x है वो जगह अगर मैं वो नंबर पुट करा तो जो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाएगी तो आप कहेंगे कि वो जो पॉइंट है, वो जो वैल्यू है x की, वो 0 बनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं x नू 3 पुट करदा, अगर x नू 3 पुट करदा, इसका मतलब जो इतने 3 है वो मेरा k का काम कर रहा, ठीक है। सो x नू आप 3 पुट कर दें, p3 इज इक्वल्स टू 3 स्क्वेयर माइनस 9। सो 9 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 3 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰਾ 0 ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ 0 ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 3 ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦਾ 0 ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ -3, x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ -3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ, p -3 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ -3 ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 9। सो -3 का जो आप स्क्वेयर करांगे वो की बन जाएगा 9 माइनस 9 0। सो px इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 9 जो मेरी पॉलीनोमियल सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं x ਦੀ वैल्यू -3 पुट ਕੀਤੀ ਤਾਂ सॉल्व करके मेरे कोल p -3 ਦੀ वैल्यू इक्वल टू 0 आ गई, ठीक है। मतलब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर एक मैं रियल नंबर देता k मतलब -3 ਤਾਂ ਉਹ 0 ਆਫ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਕਦੋਂ ਬਣੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ, मतलब ਇਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ x ਨੂੰ -3 ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ, ਸੋਲਵ ਕਰਾਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ -3 ਇਹ 0 ਆਫ ਦੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ px ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ x ਸਕੁਆਇਰ ਮਾਈਨਸ 9 ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਟ ਕੀਤੇ ਆ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 3 ਤੇ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ -3 दोनों पॉलिनोमियल ਨੂੰ 0 बना रहे हैं।
ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ दोनों पॉइंट्स की ने जीरो ऑफ दी पॉलीनोमियल। सो सिंपल लैंग्वेज आप कह सकते हैं कि वो पॉइंट ਜਿਹੜਾ पॉइंट पुट करने तो बाद मेरी पॉलीनोमियल जीरो के बराबर आ जाए उस पॉइंट मैं कहूँगी कि जीरो ऑफ दी पॉलीनोमियल है उस पॉइंट में मतलब x इज इक्वल्स टू 3 तो x इज इक्वल्स टू -3 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ जीरो ऑफ दी पॉलीनोमियल। सो जीरोज ऑफ अ पॉलीनोमियल बारे ਆਪਾਂ पिछले ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਆਫ ਅ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ मतलब ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ मीनिंग ਆਫ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਆਫ ਅ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ मीनिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕਲੀ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ ਤੇ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ मीनिंग डिस्कस ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। फॉर एग्जाम्पल जिवें अपने को एक लीनियर पॉलीनोमियल है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल पढ़न लगे हैं। एग्जाम्पल अपने को एक लीनियर पॉलीनोमियल है 2x + 3 px इज इक्वल्स टू 2x + 3 p ऑफ x क्योंकि इत्थे इस पॉलीनोमियल च मेरा वेरिएबल x है। अगर इसे पॉलीनोमियल में इदां लिखां py तो मेरी पॉलीनोमियल y वेरिएबल च आनी सी py इज इक्वल्स टू 2y + 3। सो वेरीएबल जिहड़ा भी पॉलीनोमियल यूज होगा इत्थे ब्रैकेट दे विच ओही वाला वेरीएबल या ओही वाला अल्फाबेट यूज होएगा। सिमिलरली pz दे विच भी हो सकती सी pz = 2z + 3 अल्फाबेट कोई भी हो सकता है ठीक है। सो जो भी अगर अल्फाबेट y है अपनी पॉलीनोमियल दे विच तां p ऑफ y अगर z है तो p ऑफ z इत्थे x है तो p ऑफ x। सो p ऑफ x अगर एक लीनियर पॉलीनोमियल है लीनियर पॉलीनोमियल किद्दां क्योंकि इहदी डिग्री 1 है। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰਾਂਗੇ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿੱਦਾਂ ਪਲਾਟ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ 9th ਸਟੈਂਡਰਡ ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਲੀਨੀਅਰ ਹੈ ਲੀਨੀਅਰ मतलब ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਨ ਔਰ ਗ੍ਰਾਫ ਮਿਲੂਗਾ मतलब ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਮਿਲੂਗੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ पॉलीनोमियल ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਪਲਾਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਲਾਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਗ੍ਰਾਫ ਮਿਲੇਗਾ मतलब ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ। ਜੋ ਇਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ x ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ x ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ y ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਾਂ y ਐਕਸਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਆਪਾਂ x ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕੱਟ कर रही है। सो ਜਿਹੜੀ ਲੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈ ਉਹ x ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਤੇ x ਐਕਸਿਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਇਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਬਾਰੇ। ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ੀਰੋਸ ਬਣੇਗਾ। सो ये आप लीनियर पॉलीनोमियल की गल की है कि लीनियर पॉलीनोमियल दे विच क्योंकि स्ट्रेट लाइन मिलूगी वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस नूं जिथे कट कर रही होगी वो पॉइंट सानूं दसूगा जीरोज ऑफ दी लीनियर पॉलीनोमियल बारे। सिमिलरली अगर असीं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल नूं ग्राफ के उत्ते ड्रॉ करते हैं तो सानूं किस तरह का ग्राफ मिलता है। सो जदों आपां एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल नूं ग्राफ च प्लॉट करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल किदां दी हुंदी है कोई भी पॉलीनोमियल px इज इक्वल्स टू ax² + bx + c इस फॉर्म की पॉलीनोमियल जिहदे विच x की डिग्री 2 होगी मतलब ये अगर डिग्री 2 है मीनस ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल नूं जदों भी आपां इहदा ग्राफ प्लॉट करांगे तो आपां नूं एक पैराबोला शेप मिलती है पैराबोला की शेप मिलती है। पैराबोला अपवर्ड पैराबोला भी हो सकता है डाउनवर्ड पैराबोला भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू x² ये भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है y इज इक्वल्स टू x² एक सिंपल क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है ठीक है जिहदे विच a कोऑर्डिनेट 1 है b 0 है तो c भी 0 है। मीनस अगर इस पॉलीनोमियल नूं मैं y की जगह px भी लिख सकती हूँ। सो अगर इस पॉलीनोमियल नूं मैं इस पॉलीनोमियल नाल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल नाल जे मैं कंपेयर करा तो x² दे नाल a हुंदा है इत्थे x² दे नाल a है इत्थे x² दे नाल 1 है इहदा मतलब a की वैल्यू 1 है। b वाला कोऑर्डिनेट मिसिंग है मीनस b की वैल्यू 0 है x मिसिंग है c मिसिंग है मतलब c की वैल्यू 0 है। सो ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है। इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का अगर आप ग्राफ देखिए तो एक पैराबोला होंदा
अपवर्ड पैराबोला या डाउनवर्ड पैराबोला। सो जो आप पैराबोला नू प्लॉट करांगे एक्स एक्सिस ते वाई एक्सिस दे विच, तां ये जिहड़ा पैराबोला है ये एक्स एक्सिस नू 2 पॉइंट्स ते कट कर रहा है, एक्स एक्सिस नू 2 पॉइंट्स ते कट कर रहा है। पैराबोला वाई एक्सिस नू भी कट कर रहा है, पर वाई एक्सिस तो सानू पॉलिनोमियल दी इक्वेशन पता लगती है कि किहड़ी पॉलिनोमियल है। असी देखना है कि जिहड़ा है ग्राफ है वो एक्स एक्सिस ते कित्थे कट कर रहा है। सो एक्स एक्सिस ते 2 पॉइंट्स से कट कर रहे हैं, इहदा मतलब ये दोनों पॉइंट्स की होंगे जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मीनस एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे कितने जीरोस होंगे? मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, 2 तो ज़्यादा नहीं हो सकते, 1 भी हो सकता है या 0 भी हो सकता है। 1 का केस कदों आऊगा जो यह पैराबोला इस तरह बन जाए ओरिजिन पे। सो हुण यह पैराबोला एक्स एक्सिस नू सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है, या इस तरह का केस हो जाए। सो इस केस दे विच जो पैराबोला है एक्स एक्सिस नू 2 पॉइंट्स ते कट कर रहा है, इस केस दे विच 1 पॉइंट ते कट कर रहा है, इस केस दे विच भी 1 पॉइंट ते कट कर रहा है। सो इस केस दे विच 1 0 है, इस केस दे विच भी 1 0 है, इस केस दे विच 2 जीरोस ने, एंड नो जीरोस वाला केस भी हो सकता है कि सानू जीरोस मिलन ही ना। वो केस कदों होगा जो पैराबोला या तो इस शेप च होवे, मतलब कि एक्स एक्सिस नू किते कट ही नहीं कर रहा, या फिर इस तरह की शेप च होवे। इत्थे भी वाई एक्सिस नू जरूर कट कर रहा पर एक्स एक्सिस नू नहीं कट कर रहा। सो ये सारे इंटरप्रिटेशनस असीं पढ़ियां सीगियां कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे विच किस तरह का ग्राफ बनेगा, तो उस ग्राफ नू देख के असीं किद्दां दस सकते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे किन्ने जीरोस होंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे जीरोस हो सकते हैं, हो सकता है 0 हो, मतलब नो जीरोस हो सकता है 1 0 होवे ते या 2 जीरोस होन। क्योंकि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, सो 2 तो वध जीरोस नहीं हो सकते, जिन्नी डिग्री है मैक्सिमम उन्ने ही जीरोस होंगे। इस केस 2 है, इस केस भी 1 0 है, 1 0 है, इस केस दे विच नो जीरो, बिकॉज जिहड़ा ग्राफ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो एक्स एक्सिस नू किते भी कट नहीं कर रहा। सेम इस केस दे विच भी एक्स एक्सिस नू ग्राफ किते भी नहीं कट कर रहा, सो इहदे विच भी नो जीरोस वाला केस है। इस तो बाद आपां कीता सीगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल दे विच भी साडे कोल, क्योंकि हुण क्यूबिक पॉलिनोमियल है उहदी डिग्री 3 है, इहदा मतलब कि मैक्सिमम 3 जीरोस हो सकते हैं, या 3 जीरोस होंगे या 2 जीरोस होंगे या फिर 1 0, तो या फिर साडे कोल केस बनेगा नो जीरोस वाला। हाँ जी बच्चों, हुण आपां डिस्कस करन लगे क्यूबिक पॉलिनोमियल दे केस दे विच किदां दा ग्राफ बनेगा, ते उस ग्राफ नूं देख के आपां नूं किदां पता लगूगी कि किन्ने जीरोस ने कोई भी अगर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। सो क्यूबिक पॉलिनोमियल दे केस दे विच फर्स्ट केस इस तरह का ग्राफ हो सकता है क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस विच। हुण ये जिहड़ा ग्राफ है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ये एक्स एक्सिस नू किन्ने पॉइंट्स से कट कर रहे? 3 पॉइंट्स से। इहदा मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल के किन्ने जीरोस आ गए? 3 जीरोस आ गए, ठीक है। 3 पॉइंट्स से कट कर रहे ग्राफ। हो सकता है कि ये ग्राफ इस तरह का होवे। सेकेंड केस हो सकता है ग्राफ इस तरह का होवे। हुण इस केस दे विच एक्स एक्सिस नू जो ग्राफ है वो किन्ने पॉइंट से कट कर रहा है? फर्स्ट पॉइंट ए है, सेकेंड पॉइंट ए, 2 पॉइंट से कट कर रहा है। सो इस केस दे विच साडे कोल इस पॉलिनोमियल दे जिहड़ी आपां ड्रॉ कीती है, इस पॉलिनोमियल दे किन्ने जीरोस आएंगे? 2 जीरोस, क्योंकि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस नू 2 पॉइंट से कट कर रहा है। सिमिलरली थर्ड केस दे विच इस तरह का ग्राफ हो सकता है। इस केस दे विच 1 पॉइंट ते कट कर रहे, सो इस केस दे विच ओनली 1 0, क्योंकि जिहड़ा ग्राफ है वो एक्स एक्सिस नू, ये साडियां एक्स एक्सिस नू सिर्फ 1 पॉइंट ते कट कर रहे हैं। एंड लास्ट केस अपना बन सकता है नो जीरोस वाला, अगर ग्राफ एक्स एक्सिस नू कट ही ना करे। अगर ग्राफ एक्स एक्सिस नू नहीं कट करता, ਇਹਦਾ मतलब नो जीरोस। 1 पॉइंट ते कट कर रहा है मतलब 1 0, 2 पॉइंट्स से कट कर रहा है तो 2 जीरोस, अगर 3 पॉइंट्स से कट कर रहा है तो 3 जीरोस। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री होंगी है 3, सो ये मैक्सिमम 3 जीरोस हो सकते हैं, 3 तो ज़्यादा नहीं हो सकते। सो ये सी ज्योमैट्रिकल इंटरप्रिटेशन की आपां रिवीजन की है। हुण आपां स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 दे विच क्वेश्चन की है कि तुसी ग्राफ नू ऑब्जर्व करना है, ग्राफ नू ऑब्जर्व करके दसना है कि उस ग्राफ दे जो पॉलिनोमियल ड्रॉ की गई है उहदे किन्ने जीरोस होंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, हुण आपां करन लगे हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देखते हैं।
the graph of y is equals to px are given for some polynomial px. क्वेश्चन च उन्होंने कहा भी कोई पोलिनोमियल है px, कोई भी पोलिनोमियल्स ने उन्होंने ग्राफ तुहानू ड्रॉ करके दिते ने. फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द px इन ईच केस. ये जो जिन्ने भी साढ़े कोल क्वेश्चंस ने 6 क्वेश्चंस ने, हर केस दे विच आपां ग्राफ नू ऑब्जर्व करके दसना है कि उस पोलिनोमियल दा जिहड़ा ग्राफ है उसनू देख के आपां दसना है कि किन्ने जीरोज होणगे इस पोलिनोमियल दे px दे जिन्हां दे ग्राफ ड्रॉ कीते ने. सो जिद्दां कि हुण आपां पिछे रिवाइज करके हटे कि किवें आपां नूं पता लगूगा कि किसी पोलिनोमियल दे ग्राफ नूं देख के कि उहदे किन्ने जीरोज हुंदे ने. जिहड़ा पॉइंट एक्स एक्सिस ते जो पोलिनोमियल है जिथे वो एक्स एक्सिस ते कट करदी पई है वो पॉइंट है जिहड़ा वो आपां नूं दसेगा कि उहदे किन्ने जीरोज ने. अगर पोलिनोमियल का ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस नूं 2 पॉइंट्स से कट कर रहा मीनस वो 2 जीरोज होंगे. अगर 3 पॉइंट्स से कट कर रहा है इसका मतलब वो 3 जीरोज होंगे. सो इसी तरह हुण आपां इन्हां क्वेश्चंस नूं ऑब्जर्व करके देख के दसदे हां कि किन्ने जीरोज होंगे हर केस दे विच. फर्स्ट केस दे विच देखो एक्स एक्सिस ते आ साडी पोलिनोमियल पी एक्सिस दा जिहड़ी पी एक्स पोलिनोमियल है उहदा ग्राफ है जो कि एक्स एक्सिस दे बिल्कुल पैरेलल है. सो ये जिहड़ा ग्राफ है ये एक्स एक्सिस नूं किते भी नहीं कट कर रहा, वाई एक्सिस नूं कट कर रहा, पर वाई तां वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स तां साडी पोलिनोमियल दी दसेगी कि पोलिनोमियल दी एक्सिस है जिहड़ी ये साडी लाइन है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है. सो एक्स एक्सिस नूं किते भी नहीं कट कर रही. ਇਹਦਾ मतलब इस केस दे विच साडे कोल नो जीरोज होणगे बिकॉज ये लाइन एक्स एक्सिस नूं किते भी नहीं कट कर रही. सो इस लाइन दे या इस पोलिनोमियल दे नो जीरोज होणगे मतलब कोई भी जीरो नहीं होगा. हुण इत्थे याद रखियो आंसर दे विच जीरो जीरोज नहीं लिख के आने कि जीरो जीरोज ने. ਇਹਦਾ मतलब अगर नहीं कट कर रही ਇਹਦਾ मतलब नो जीरोज है मतलब ਇਹਦਾ कोई भी जीरो नहीं है. नैक्सट जिहड़ा बी पार्ट है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ग्राफ है पोलिनोमियल ਦਾ ਇਹ एक्स एक्सिस ਨੂੰ सिर्फ एक पॉइंट ਤੇ ਕੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਇੱਥੇ ग्राफ है ਜਿਹੜਾ y ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ पर y ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ. ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ग्राफ x एक्सिस ਤੇ ਕੱਟ ਕਰੇ. तो x एक्सिस ਤੇ ओनली 1 पॉइंट ਤੇ ਕੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ 1 0 है. इस पोलिनोमियल ਦੇ ओनली 1 0 है. सी पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ग्राफ है पोलिनोमियल ਦਾ ਆ पोलिनोमियल ਦਾ ग्राफ है ਉਹ x एक्सिस ਨੂੰ 1 2 ਤੇ 3 3 पॉइंट से कट कर रहे. सो ਇਹਦਾ मतलब इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜ਼ੀਰੋਜ਼. डी पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ जो पोलिनोमियल ਦਾ ग्राफ है ਉਹ x एक्सिस ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ पॉइंट से कट कर रहा 1 2. सो इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜ਼ੀਰੋਜ਼. ई पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ पोलिनोमियल ਦਾ ग्राफ x एक्सिस ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ पॉइंट से कट कर रहा 1 2 3 ਤੇ 4. सो 4 ਜ਼ੀਰੋਜ਼. f केस ਦੇ ਵਿੱਚ 1 2 3 फर्स्ट पॉइंट इत्थे कट कर रहे हैं सेकंड इत्थे ते थर्ड इत्थे. सो 3 जीरोज. सो ग्राफ विच जिथे भी ग्राफ एक्स एक्सिस नू कट करे एक्स एक्सिस नू कट करे तो वो जिहड़ा कोऑर्डिनेट है उन तो सानू पता लगूगा कि वो जीरोज किन्ने ने उस पोलिनोमियल दे ते किहड़ा जीरो है वो किदां पता लगूगा ग्राफ एक्स एक्सिस ते जिथे भी कट करे. सो ये सीगे जीरोज दे बारे च. इस तो नैक्सट आपां कीता सीगा एक रिलेशनशिप बनाया सीगा बिटवीन दी कोएफिशिएंट्स ऑफ द पोलिनोमियल ते जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल दा. सो हुण आपां ओहदे बेसिस ते जिहड़ी अपनी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.2 ओनू सॉल्व करदे हां. हाँ जी बच्चों हुण आपां करन लगे एक्सरसाइज 2.2. सो एक्सरसाइज 2.2 दा क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 दी स्टेटमेंट है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. सानू क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है. एक तां फर्स्ट पार्ट की है कि फाइंड द जीरोज जीरोज फाइंड करने. सेकंड है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन दी जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स. जीरोज ते जो साडे कोएफिशिएंट्स आएंगे जीरोज जेडे असीं सॉल्व करके कढांगे ते जो साडे कोएफिशिएंट्स गिवन ने सानू क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे उन्हां दे विच आपां रिलेशनशिप वेरीफाई करनी. सो जो अपना फर्स्ट स्टेप है फाइंड दी जीरोज ऑफ दी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. सब तो पहले आपां जीरोज फाइंड करते हैं. सो ये अपने कोल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है x² - 2x - 8. ਜਦੋਂ 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰੂਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ. ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ 9th ਸਟੈਂਡਰਡ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ. ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਥਡ ਸੀਗੇ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾ ਲਓ ਦੋ, ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਦਾ ਮਿਡਲ ਟਰਮ ਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰ ਲਓ,
ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਰੂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਮੈਥਡ ਆਪਾਂ ਇਸ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ 9th ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੀ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨਾਲ। ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ a 1 into 8, ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ 8 ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ p ਤੇ q ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ p ਤੇ q ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 8 ਬਣ ਜੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਜਾਂ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਬਣ ਜੇ। ਆਪਾਂ 8 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 4, ਫਿਰ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 2, ਸੋ 2 2s are 4, 4 2s are 8। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ 8 ਬਣ ਰਿਹਾ। 4 minus 2, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 4 minus 2 ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ p ਤੇ q ਮਿਲ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ p ਤੇ q ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 8 ਬਣ ਰਿਹਾ, ਬਿਕੋਜ਼ 4 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 8 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਬਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 2s are 4, ਇੱਕ 4 ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ 2 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ x ਸਕੁਏਅਰ ਮਾਈਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 4 ਜੋ ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆਏਗਾ। 4x plus 2x minus 8 ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ x ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ x ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਸਕੁਏਅਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੰਗਲ x ਹੈ। ਸੋ x ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਿਆ x minus 4 plus 2, 2 4s are 8, ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ 2 ਹੈਗਾ, ਸੋ ਆਪਾਂ 2 ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। अंदर यही सेम चीज बचेगी x minus 4। सो दो फैक्टर्स अपने को किहड़े आ गए, एक आ गया x minus 4, एक आ गया x plus 2। हुण अगर असीं जीरोस फाइंड करने तां इस पॉलीनोमियल नूं जीरोस की हुंदे आ जदों अपने कोल पॉलीनोमियल दी वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाए। मतलब अगर मैं जीरोस फाइंड करने तां इस पॉलीनोमियल दे जिहड़े फैक्टर्स बनने इन्हां नूं 0 दा इक्वल रखना। x minus 4, x plus 2 is equal to 0। ਇਹਦਾ मतलब x minus 4 0 हो सकता है या x plus 2 0 हो सकता है। अगर x minus 4 0 तो x is equals to 4 आ गया, माइनस का 4 से उस तरफ जाके प्लस, x plus 2 है, x is equals to minus 2। so x is equals to 4 तो x is equals to minus 2, मेरे को दो zeros आ गए इस पॉलीनोमियल दे x square minus 2x minus 8। नैक्सट जो अपना स्टैप है वो है वेरीफाई दी रिलेशनशिप बिटवीन दी जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। जीरोज ते कोएफिशिएंट्स दे विच की रिलेशनशिप हुंदी है वो आपां पिछले लैक्चर्स दे विच जदों आपां चैप्टर पढ़ रहे सीगे उदों आपां पूरा डिराइव कीता सीगा कि अगर साडे कोल एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये साडे कोल एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, एंड अगर अल्फा एंड बीटा, अगर अल्फा ते बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दे जीरोज ने, देन सम ऑफ जीरोज, तो इन्हां जीरोज दा जदों मैं सम करूंगी मतलब अल्फा प्लस बीटा वो किहदे बराबर आएगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो माइनस दा साइन, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है b, ते कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है a। सो ये सीगा अपना फर्स्ट रिलेशन, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a। सेकंड रिलेशन की सी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जीरोज ने अल्फा ते बीटा, सो अल्फा ते बीटा दा आपां प्रोडक्ट करना है मतलब मल्टीप्लाई करना है इन्हां आपस दे विच, अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म कितनी है c अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a। सो ये सी अपना सेकंड रिलेशनशिप। हुण यह रिलेशनशिप आपां वेरीफाई करनी है इस क्वेश्चन दे विच। सो इस क्वेश्चन च देखो जिस तरह कि इत्थे अल्फा ते बीटा अपने कोल दो जीरोस सीगे, अपने कोल दो जीरोस हैगे ने, x इज इक्वल्स टू 4 ते x इज इक्वल्स टू -2, ते कोएफिशिएंट्स a b c आपां नूं किद्दां पता लगोगे, इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन नूं इस इक्वेशन दे नाल जदों मैं कंपेयर करा तां a दी वैल्यू देखो 1 है, b दी वैल्यू
ਜਿਹੜਾ x ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ -2 ਤੇ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ -8। ਸੋ a b c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਜ਼ੀਰੋਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ। तो जो आप कंपेयर किया है स्टैंडर्ड इक्वेशन ना स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c नाल, तो साडे कोल कोफिशिएंट्स a दी वैल्यू कितनी आ गई 1, b दी वैल्यू -2 ते c दी वैल्यू -8। a b c दी वैल्यूज आप किद्दां कड्डियां स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाल गिवन पॉलिनोमियल नू कंपेयर करके। रूट्स सानू दिते हुए ने, जीरोस दिते हुए ने। सब तो पहला अल्फा ले लेने आप फर्स्ट जीरो ते बीटा पर ले लेने -2। रिलेशनशिप की सी अपने को कि सम ऑफ रूट्स सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू -b/a ते प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू c/a। ये अपने को रिलेशनशिप है कोफिशिएंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन ते जीरोस उन्हां दोनां दे विच रिलेशनशिप है जिहड़ी आपां वेरीफाई करनी है। वेरीफाई करने का मतलब यह है कि जो भी मैं ये वैल्यूज पुट करा तो मेरे को लैफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आऊगी, तो आप कहेंगे कि वो वेरीफाई हो गया। अगर लैफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आती तो आप कहेंगे कि वेरीफाई नहीं हो रहा। सो सब तो पहला सम करना है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। सो 4 + -2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। माइनस द b मतलब माइनस एक साइन बार तो एक b की वैल्यू है -2/a की वैल्यू है 1। सॉल्व कर दे 4 + -2 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस ने एक दूसरे कैंसिल करता है 2 बन गया 2/1। 4 - 2 इज 2, 2/1 भी 2 होंगे। सो लैफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, लैफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। मीनस फर्स्ट रिलेशनशिप है जी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a वेरीफाई होगी। सैकेंड जो रिलेशन है कि प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू c/a, मतलब जेडे अपने को दो जीरोज आए ने इन्हां दा आपां प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है। 4 × -2 इज इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है -8 ते a की वैल्यू 1। 4 × -2 -8 इज इक्वल्स टू -8 -8/1 की बन जाएगा -8। सो इत्थे भी लैफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो दोनों केसेस दे विच साडे कोल रिलेशन वेरीफाई होगी। सो इस तरह इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस भी आपां करने ने। किद्दां करने हैं? सब तो पहले जिहड़ी पॉलिनोमियल दित्ती है उहनूं फैक्टराइज कर लो, फैक्टराइज करके दो जीरोस कढ लो। पॉलिनोमियल नूं जीरो दे नाल इक्वेट करके दो फैक्टर्स नूं जीरो नाल इक्वेट करके जीरोस फाइंड कर लो। जीरोस फाइंड करन तो बाद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाल कंपेयर करके सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू -b/a वाली रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। उस तो बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू c/a वाली रिलेशनशिप नूं वेरीफाई करना है। सैकेंड क्वेश्चन करते हैं। सो हुण आपां पढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.2 दा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दा नैक्सट क्वेश्चन जिहड़ा अपना नैक्सट पार्ट क्वेश्चन दा। हुण अपने को पॉलिनोमियल दित्ती हुई देखो 6x² - 3 - 7x। करना की है आपां फाइंड दी जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक तो ये जीरोस फाइंड करने ने, सैकेंड है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन दी जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। सो सब तो पहला 6x² - 3 - 7x आपां इहनूं पहला स्टैंडर्ड फॉर्म च बना लिए। वो किस तरह आएगा 6x² - 7x - 3। क्यों? क्योंकि साडी कोल जिहड़ी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुंदी है किस तरह की फॉर्म च हुंदी है ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। सो जो अपनी गिवन पॉलिनोमियल है आपां नूं उहनूं आपां एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक दी फॉर्म च बना लिया। हुण आपां इहनूं फैक्टराइज करके अपना जीरोस फाइंड आउट करने हैं। सो फैक्टराइज करने लिए आपां की करदे हुंदे इस तरह के p ते q फाइंड करते हैं कि उन्हां नूं मल्टीप्लाई करके की बने 6 × 3 इज इक्वल्स टू 18 बन जाए। तो जो मैं इन्होंने प्लस या माइनस करा तो मेरे को 7 बन जाए। हुण देखो 18 के आप फैक्टर्स लिखते हैं 9 ते 2 9 नूं 2 नाल मल्टीप्लाई किया 18 बन गया। 9 चों मैं 2 माइनस करा तो मेरे को 7 आ जाता है। मीनस मैनू p ते q मिल गए। ठीक है, फैक्टर्स मिल गए दो p ते q। सो इन्होंने आप लिख लेना है। क्योंकि 7 के अगे माइनस का साइन है
सो 2 ਤੇ 9 ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ 9 ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ। ਸੋ p of x is equals to 6x square minus 9x plus 2x minus 3। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਜ਼ੀਰੋਜ਼, ਤੇ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 6x square minus 9x plus 2x minus 3 ਨੂੰ equals to 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, 6 ਵੀ ਤੇ 9 ਵੀ। x ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ x ਸਕੁਆਇਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ x ਹੈ। ਸੋ 3x ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ। अंदर की बच गया 2x minus 3 प्लस 2x minus 3 इस तरफ बचना चाहिए। सो 1 कॉमन 2x minus 3 is equals to 0। सो 2x minus 3 कॉमन आ गया, इन्हों सैपरेट कर लेने। 3x plus 1 एक फैक्टर बन गया, 2x minus 3 is equals to 0। सो अपने को दो फैक्टर्स बन गए, 3x plus 1 ਤੇ 2x minus 3 is equals to 0। दोनों फैक्टर्स ਨੂੰ 0 ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। 3x plus 1 is equals to 0, 2x minus 3 equals to 0। सॉल्व करांगे ਇਹਨੂੰ, प्लस ਦਾ 1 उधर जाके -1 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड, सो -1/3। दूसरी साइड 2x is equals to 3, so x is equals to 3/2। मीन्स अपने को दो zeros आ गए, x is equals to -1/3 ਤੇ x is equals to 3/2। ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਗਿਵਨ ਸੀ, ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 7x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅੱਗੇ ਆਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ 3 ਆਣੀ ਹੈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ। ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, p ਤੇ q ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਏ। ਦੋ ਫੈਕਟਰਸ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ 6 × 3 18 ਬਣੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 7 ਬਣੇ। ਸੋ ਦੋ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 3x plus 1 ਤੇ 2x minus 3। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਇਕੁਏਟ ਕੀਤਾ, ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ। x is equals to -1/3 ਸਾਡਾ ਇੱਕ 0 ਆਇਆ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, x is equals to 3/2। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਮੈਕਸਿਮਮ 2 ਰੂਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਹੀ ਰੂਟ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਆਏ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਹੀ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਹੀ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਏ। ਨੈਕਸਟ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੀ ਹੈ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸਮ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ -b/a ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ c/a। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ abc ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ, ax ਸਕੁਆਇਰ 6x ਸਕੁਆਇਰ ਮੀਨਸ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 6, b ਦੀ ਵੈਲਿਊ plus bx minus 7x। ਸੋ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ, -7। c ਦੀ ਵੈਲਿਊ c -3, c मतलब कांस्टेंट टर्म कितनी है, -3। रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। सब तो पहला सम ऑफ जीरोज, जेडे जीरोज आए ने इन्हां दा सम करना है। -1/3 प्लस सेकंड जीरो की 3/2 इज इक्वल्स टू -b हैगा -7/a, a दी वैल्यू 6। डिनोमिनेटर इत्थे 3 है, इत्थे 2। की करांगे आपां 3 ते 2 दा एलसीएम लवांगे। एलसीएम आ जाएगा 6, 3 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 6 ਆ ਗਿਆ एलसीएम। 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 6 ਆਂਦਾ ਹੈ 2 ਤੇ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 6 ਆਂਦਾ ਹੈ 3 ਤੇ, ਸੋ ਉੱਪਰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। 2 × 1 -2 प्लस 3 3s are 9। 9 -2 माइनस प्लस माइनस 9 चो 2 माइनस कर देंगे, आंसर की आ गया 7/6। सो इस तरफ b की वैल्यू अपने को -7 है, तो एक माइनस अगे भी लगना है बिकॉज माइनस ऑफ b, तो एक माइनस अगे एक अपने को पूरी b की वैल्यू जो कि है -7 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। सो 7/6 लैफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, मीनस फर्स्ट जो रिलेशन वो वेरीफाई हो गया। सैकेंड रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, आप इन्होंने मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करते हैं। -1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 इज इक्वल टू c/a। c की वैल्यू साढ़े को है -3,
ए दी वैल्यू 6, ए दी वैल्यू 6 मल्टीप्लाई करांगे हुण अपने कोल इत्थे जिहड़े फ्रैक्शंस ने मल्टीप्लाई हो रहे हैं सो आप कटिंग कर देंगे 3 1 जा 3 3 1 जा 3 की आ गया साडे कोल -1/1 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 इधर हैगा -3/6 -1 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ -1 2 1 ਜਾ 2 ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ -3/6 ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਗਾ ਕਿ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ बट हजे सम कंप्लीट नहीं होया आप अगे कटिंग भी करनी है 3 ते 6 दोनों केड़े सेम टेबल ते जांदे ने 3 दे टेबल ते 3 1 जा 3 3 2 जा 6 so -1/2 is equals to -1/, so इस साइड भी रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करना है विच थर्ड नहीं देना है, देख के कि -3/6 आ गया उन्होंने सिंपलेस्ट फॉर्म च भी कटना है, अगे उहदी कटिंग भी करनी है जेडे टेबल ते हुंदी है। कटिंग आप उदों तक करते हैं जब तक दोनों सेम टेबल ते आने बंद ना हो जा, ठीक है। जिवें 3 ते 6 दोनों सेम टेबल ते आ रहे सीगे 3 दे टेबल ते आ रहे सीगे सो 3 कॉमन आ रहा सी तो आपां ओहदी कटिंग करके ओनू रिमूव करता 1/2 अपने कोल बन गया 3 1 जा 3 3 2 जा 6 सो -1/2 इज इक्वल्स टू -1/2। इस क्वेश्चन दे विच जीरोस फाइंड कीते रिलेशनशिप वेरीफाई कीतियां ते ओह वेरीफाई हो गई। सो इस तरह इस एक्सरसाइज दे क्वेश्चन नंबर 1 दे ये मैं 2 पार्ट्स करवाए ने, बाकी जिन्ने भी पार्ट्स ने वो सारे पार्ट्स तुसी खुद सॉल्व करके देखने ने, सारे ईजी ने। सब तो पहला फैक्टराइजेशन करके जीरोस फाइंड कर लेने, उस तो बाद रिलेशनशिप इस फॉर्मूले दे विच वैल्यूज पुट करके वेरीफाई कर लेने। हर क्वेश्चन दे विच वेरीफाई होणगे। अगर किते भी तुहानूं लगदा कि वेरीफाई नहीं हो रही ਇਹਦਾ मतलब वो क्वेश्चन गलत है, ਉਹਨੂੰ क्वेश्चन ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ चेक कर लेना कि कित्थे गलती हुई है तो ਉਹਨੂੰ सही कर लेना। सो ये सीगा क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। सो इस तो अगे असी पढ़ांगे साडे नैक्सट लैक्चर दे विच। थैंक यू।